Good morning, everyone. We have discussed different type of molecular orbital energy level diagrams for different type of molecules like homonuclear diatomic molecules and heteronuclear diatomic molecules. Homonuclear and heteronuclear diatomic molecules. In the continuity of previous video lecture in which we have discussed heteronuclear diatomic molecule, and in last video lecture we discussed boron oxide and nitric oxide. Okay. In the last video lecture, we discussed boron oxide and nitric oxide, and in this video lecture, we discuss carbon monoxide, molecular orbital energy level diagram from carbon monoxide. CO. Okay, so let's start. In the case of the carbon monoxide, carbon valence shell, carbon atomic number is 6, and the electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p2, and oxygen atomic number 8, electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p4. Okay. In the case of the carbon, the valence shell have 4 electron, and in the case of the oxygen, the valence shell have 6 electron. Here is 4 electron and here is 6 electron. 4, 6, total हो गए 10 electron. Okay. So CO molecules have 10 electron in the valence shell. Okay. So molecular orbital electronic configuration for CO molecule. Molecular orbital electronic configuration for CO molecule. वो क्या होगी? Total electron 10 है. Sigma 2s2, sigma star 2s2, pi 2px2, pi 2py2, sigma 2pz2. Okay. Uh, so CO have 10 electron and the electronic configuration is this one. Let's fill the electron. Here is carbon. Here is oxygen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. So 1, 2, 1, 2, and carbon have 1, 2, 2, 4, 6, and oxygen have 1, 2, 3, 4. 4 plus 4 plus 2, 6, 2, 2, 6, 2 plus 2, 2, 4. So the bond order is bond order for CO. Number of bonding electron 2, 4, 6, 8. Number of anti-bonding electron 2. 8 divided by 8 minus 2 divided by 2, 6 by 2 equals to 3. Okay. So CO molecule has triple bond and bond dissociation energy is 10 BDE. Bond dissociation energy 1067 kilojoule per mole, and bond length 1.128 angstrom. Okay. नाउ अगर हम CO पॉजिटिव की बात करें, CO पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? Molecular orbital electronic configuration for CO positive is sigma 2s2, sigma star 2s2, pi 2px2, pi 2py2, sigma 2pz. One of the electron is removed from the bonding molecular orbital sigma 2pz.
सो दैट मीन्स इस केस में जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो कम होगा CO पॉजिटिव के लिए अगर हम बात करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो कम होगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम होगा। ओके, CO पॉजिटिव के लिए नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल से गया तो कितना होगा 7 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 5 बाय 2 डिवाइडेड इक्वल्स टू 2.5। ओके, दैट मीन्स CO पॉजिटिव बॉन्ड इज रिड्यूस्ड। तो CO पॉजिटिव की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो कितनी है, बॉन्ड लेंथ कितनी है, बॉन्ड लेंथ कितनी है CO पॉजिटिव की 1.15 एंगस्ट्रॉम। ओके, CO पॉजिटिव के लिए बॉन्ड लेंथ कितनी है 1.15 एंगस्ट्रॉम एंड CO के लिए बॉन्ड लेंथ है 1.2 एंगस्ट्रॉम। here is an ट्रिपल बॉन्ड, here is an 2.5। दैट मीन्स बॉन्ड ऑर्डर की अगर हम बात करें 3, CO का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है एज कम्पेयर टू CO पॉजिटिव। CO का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है CO पॉजिटिव से, दैट मीन्स CO पॉजिटिव की जो बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए थी वो ज्यादा होनी चाहिए थी एज कम्पेयर टू CO। बट यहाँ पे क्या, यहाँ पे रिवर्स हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे इसकी बॉन्ड लेंथ CO पॉजिटिव की, मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ, इसको नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। CO बॉन्ड ऑर्डर 3, बॉन्ड लेंथ 1.128 एंगस्ट्रॉम and CO positive bond order 2.5 and bond length is 1.15 angstrom। but experimentally अगर हम बात करें theoretically on the concept of the bond order, this bond length should be larger than the CO bond length। बट यहाँ तो रिवर्स हो रहा है। दैट मीन्स जो मोलिकुलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम हम CO के लिए कंसीडर करें एक्चुअल में वो नहीं है। बिकॉज हमने जो इलेक्ट्रॉन रिमूव किया इन द केस ऑफ CO पॉजिटिव, द इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम द बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ओके, बट एक्चुअल जब CO के केस में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन था वो था सिग्मा 2pz 2 एंड इस केस में जो इलेक्ट्रॉन था सिग्मा 2pz 1। दैट मीन्स the one electron is removed from the bonding molecular orbital, but this is only feasible when the electron is removed। इसको मैं राइट डाउन कर रहा हूँ। दिस इज एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड बॉन्ड लेंथ, तो ये गलत नहीं हो सकती। दैट मीन्स जो थ्योरेटिकली हम कंसीडर कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ अभी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमने छोड़ दी हैं। दैट मीन्स दिस इज ओनली फिजिबल, दिस इज ओनली पॉसिबल if the electron is removed from the anti-bonding molecular orbital। ओके, सो यहां से क्या कंसीडर हुआ कि जो एनर्जी लेवल डायग्राम है कार्बन एंड ऑक्सीजन के लिए, एटॉमिक ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम है कार्बन और ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन इज highly electronegative than carbon। Okay, therefore the atomic orbital of oxygen are lower than that of the carbon। ऑक्सीजन की जो एटॉमिक ऑर्बिटल होगी, ऑक्सीजन एटॉमिक ऑर्बिटल लोअर देन कार्बन ड्यू टू द डिफरेंस इन द
electronegativity of oxygen and carbon, this sigma star 2s antibonding molecular orbital is slightly higher in energy than sigma 2pz, pi 2px and pi 2py. दैट मीन्स जो ये ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी यहाँ पे है। मैं इसको ग्रीन पेन से ड्रा कर रहा हूँ। जो ये ऑर्बिटल है, ये वाली ऑर्बिटल, ये यहाँ पे होनी चाहिए। तभी जाके जो एक्सपेरिमेंटली डाटा है उसको हम फुलफिल कर सकते हैं। ये इस तरह से रहेगा। जो सीओ के लिए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम वो डिफरेंट है होमोन्यूक्लियर और हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के कंपैरिजन। सिग्मा जो स्टार 2 है उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। अब यहां से जो हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे वो करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर हमें मिलेगा जो एक्चुअल में होना चाहिए। अब हम, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली डाटा क्या हो रहा है कि सीओ पॉजिटिव के लिए जो बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज हो रही है। दैट मीन्स जो सीओ पॉजिटिव के लिए बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आया वो 2.9 होके 3 से ज्यादा होना चाहिए। और 3 से ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर तभी आएगा जब इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल से रिमूव होगा। सो सीओ पॉजिटिव के लिए हम बात करते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन, सो लास्ट इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम द सीओ पॉजिटिव के लिए एक बार हम इसको मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट डाउन कर लेता हूँ। सिग्मा 2s2 sigma star 2s2 pi 2px2 pi 2py2। ओके, ये यहाँ पे इस तरह से नहीं होगा because in the case of the CO molecule the electronic configuration is not just like homonuclear and heteronuclear diatomic molecules. So फर्स्ट कार्बन के लिए अगर हम बात करें 1s2 2s2 2p2, ऑक्सीजन पॉजिटिव के लिए 1s2 2s2 2p3 3 2 5 2 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे 4 और 5, टोटल 9 इलेक्ट्रॉन होंगे। सो वैलेंस CO पॉजिटिव मोलिकुलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर CO पॉजिटिव इज सिग्मा 2s2 pi 2px2 pi 2py2 then sigma 2pz2 and sigma star 2s1। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करना 2 4 6 8 9। सो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? अब जो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन होगा इस केस में, इन द केस ऑफ द CO पॉजिटिव, और यहाँ पे भी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, सो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2 4 6 8 एंड नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 7 डिवाइडेड बाय 2 3.5। अब यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 3.5 आया इस एनर्जी लेवल डायग्राम से। ओके, एंड अगर हम जो हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए जो नॉर्मल ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम ले रहे हैं, अगर हम उसको यूज करते हैं तो उस केस में जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा था 2.5 आ रहा था। दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट molecular orbital diagram for the CO molecules. So you have to remember which one is the molecular orbital energy level diagram for the CO molecules. So this is in a different case than BO and NO molecules. Now let's discuss the last molecules. This one. Molecular uh, orbital energy level diagram for CN molecule.
Cn carbon 6, 1s2, 2s2, 2p2, nitrogen 7, 1s2, 2s2, 2p3, valence cell electron 4 plus 5, total 9 electron. So the valence cell electronic, so the molecular orbital energy, molecular orbital electronic configuration for the Cn molecule is sigma 2s2, sigma star 2s2, pi 2px2, pi 2py2, sigma 2pz1. Here is an carbon, here is nitrogen, and here is Cn molecule. This is Cn 1 2 1 2, nitrogen have 1 2 3, and carbon has 1 2. So 1 2 1 2, and pi 2 px में 1 2 3 4 5, 3 plus 2 5 इलेक्ट्रॉन। और बॉन्ड ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 4 6 7 minus 2 divided by 2 5 divided by 2 equals to 2.5. तो Cn के लिए जो मोलिकुलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम के अकॉर्डिंग बॉन्ड ऑर्डर क्या है 2.5। और Cn नेगेटिव के लिए अगर हम बात करते हैं, Cn नेगेटिव के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, Cn नेगेटिव के लिए बॉन्ड ऑर्डर होगा, लेट्स वेट अ मिनट, Cn नेगेटिव के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, मैं डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहा हूँ, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, 5 plus 4 9 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, Cn plus electron goes to Cn negative, pi 2px2, pi 2py2, sigma 2pz2, Cn negative, Cn negative, nitrogen, carbon 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 4 2 6 6 और 4 10, 1 2 1 2 1 2। Cn नेगेटिव के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 2 4 6 8, 8 minus 2 divided by 2 6 by 2 equals to 3. Cn negative has triple bond. So with this example we have completed the molecular orbital energy level diagrams for homonuclear diatomic molecules and heteronuclear diatomic molecules. And the heteronuclear diatomic molecules, the molecular orbital energy level diagram for the carbon monoxide CO molecule is different than the other three heteronuclear diatomic molecules, that is boron oxide, nitric oxide CO and CN cyanide. ओके, सो आपने ये ध्यान रखना है। सो आई होप आपको जो मोलिकुलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम है वो समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड learning the concept of molecular orbital energy level diagrams for homonuclear and heteronuclear diatomic molecules. So thank you so much. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर हम किसी नए टॉपिक के साथ आपके साथ मिलेंगे। सो थैंक यू।